Praise the name of the Lord. Hallelujah. We give you glory, Jesus of Nazareth. Bless your holy name, Lord. Thank you. Hallelujah. Wonderful Jesus, we magnify your name. Hallelujah. For your name is name above every other name. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. We give you praise, Lord. We give you honor. We give you glory. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless your name. We bless your name. Bless your. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Greetings to you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Trying to call who are perhaps not in a right frame of mind to be online. Soon we will do Zoom so that we can see people on screen in different nations. Soon we will be doing that as well. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ruby Sanghera ji, the Lord bless you. Greetings to you in Jesus' wonderful name. The Lord move upon your household, upon your sister Taljinder and her family. Komal Masih from Delhi, the Lord bless you, bless your family, bless your household. May the Lord take you into greater understanding of His love, of who He is, His very character and virtue. I greet you, Dorothy Thapa, the Lord bless you. Shalom. Rahul Masih, Jai Yeshu Masih ki, the Lord bless you. And I greet you, Devinder Kular from Britain. Excuse me, the Lord bless you. Hallelujah. And I greet Gurupreet Singh ji. The Lord bless you. Pastor Baldev ji. Jai Yeshu Masih ki Pastor ji. Hallelujah. आपके पिताजी अब दिखाई नहीं देते मेजर जी. हालेलुया. धन्यवाद हो. आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? प्लीज लेट मी नो इफ यू हियर मी प्रॉपरली. हालेलुया. हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़े समय प्रभु की आराधना करेंगे. हालेलुया. हम सब मिलके एक ज़बूर गाते हैं. हालेलुया. ज़बूर नंबर. ऐसा ज़मीन दिलों को तारीफ करो रब दी, खुशी नल तो सी करो खुदा दी बंदगी. यहोवा तो सी जानो ओ है खुदा. यहोवा तो सी जानो ओ है खुदा. बनाया ने सानू, बनाया ने सानू दे सीवी. ऐसा ज़मीन लोको तारीफ करो रब दी,
तारीफ करो रब दी, खुशी नल सारे गाओ यसू दी बंदगी, यहोवा दी बुजुर्गी, सब करो खुशी नाल, बुजुर्गी सब करो खुशी नाल, ओदे हजूर च आवो ते करो बंदगी. Lord, we bless your holy name. Lord, we give you praise. We give you honor, Lord. We exalt you. We worship you. We praise you. We magnify you, Lord. We come before you to worship you, to exalt you. We lay our lives at the foot of the cross in a fresh way. Cleanse us in the blood, for we repent of all pride and all sin that lurk deep inside, all ego, the love that we have for money, the love for the worldly things. We repent for them, Father, that we loved this world more than we loved you. So, Lord Jesus, let your cleansing power flow on us. Hallelujah. Let your spirit minister to the deep parts of our inward being. तेरे लहू की जय खुदावन, तेरे जलाली नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन. मैंने सुबह आपसे बात की जॉन चैप्टर नंबर 9 में यीशु मसीह एक ब्लाइंड को, जो जन्म का अंधा है, उसकी आंखों पे यीशु मसीह स्पिटल बना के, एंड जीसस सेंड्स हिम टू सिलोम. सिलोम का मतलब है अपोस्टल, अपोस्टोलोस वर्ड है, भेजा हुआ. अपोस्टोलोस, यीशु मसीह अंधे बंदे को अपोस्टोलोस, अपोस्टल के पास भेजते हैं. देखिए ट्रू अपोस्टल कौन है. जब अपोस्टोलोस के पास जाता है वो अंधा था, बट क्या लिखा है यहाँ पे, एंड ही केम सीइंग, वो देखता हुआ वापस लौटता है. True apostolic anointing is to restore the sight to the blind. True apostolic anointing is to make you see who God is and how he works, that you may see his deep ways, that you may see his character, his attributes, that you may become acquainted with your God, that you may know him. They that know their God, Daniel says, shall do exploits. They shall wax strong and they shall do exploits. Those who know their God, not those who know about God, but those who know God. Hallelujah. परमेश्वर को इंटीमेटली जानना है. वो देखता हुआ लौटा. मैंने सुबह शेयर किया हाफ एन आवर का मैसेज, हम अब आगे चलेंगे वर्स नंबर 8. जब ये अंधा देखने लगा, इसकी आंखें बन गई ऐसे, आंखें थी नहीं, बॉल नहीं थे, या ऐसे आंखें बंद थी, आई डोंट नो, वट एवर, बट जीसस क्रिएटेड द आईज. और ये सुजाखा हो गया, देखता हुआ लौट रहा है. पहली बार खूबसूरत दुनिया देख रहा है, पहली बार इंसानों के चेहरे देख रहा है, पहली बार नीला अंबर देख रहा है, पहली बार शायद सूर्य को चढ़ा देखा होगा इसने. जो रंग खूबसूरत यहोवा ने बनाए पहली बार अपने जीवन में देख रहा है. बहुत बड़ी खुशी है इस इंसान के लिए जो अपनी माँ की कोख से अंधा था. माँ के गर्भ में हर इंसान अंधा होता है, उसे कुछ दिखता नहीं है. तो वो माँ की कोख में भी अंधा है, माँ की कोख से बाहर आया तो भी अंधा है, और एक बड़ी दुख भरी जिंदगी जी रहा था, भीख मांगने वाली. तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है passed by he saw a man which was blind from his birth. It doesn't say that he was begging alms, but it is understood कि वो सड़क के किनारे बैठा क्या कर रहा था, कंधा. तो अब जब इसकी आंखें आ गई, इसको खूबसूरत दुनिया दिखाई दे रही है. 8 वचन में आइए.
अब ये वापस लौट रहा है सुजाखा होके अपने घर, नाचता कूदता हुआ जा रहा होगा, क्योंकि अंधा था अब देखता है। जब वापस लौट रहा है तो कहां पे आ गया? अपने मोहल्ले में आ गया, अपनी नेबर में, पड़ोस में आ गया। तो क्या लिखा है? द नेबर्स देयरफॉर एंड विच दे एंड द नेबर देयरफॉर एंड दे विच बिफोर हैड सीन हिम। अब आ गया उन लोगों के बीच में जो इसको जानते थे कि ये जमांद्रू अंधा है, पड़ोसी हैं, जान पहचान के लोग हैं। वो लोग अचानक इस अंधे को, जो जन्म का अंधा शायद भीख मांगता था, इसको नाचता कूदता हुआ लौटता देख रहे हैं, तो उनको शौक लग गया, धक्का लगा उन्हें। क्या कहते हैं? नाउ वी नो दैट दाउ हैज, क्या लिखा है यहाँ पे? 8 और सीन हिम दैट ही वॉज ब्लाइंड। उन्होंने उसको अंधा देखा था। इन लोगों ने, इन पड़ोसियों ने इस व्यक्ति को अंधा देखा था। ये जान पहचान के लोग हैं, इनको पता था इसकी आंखें नहीं, ये अंधा है, ये किसी काम का नहीं है। शायद कोई उससे ज्यादा दोस्ती नहीं रखता था, इंटीमेसी नहीं थी किसी की। अचानक इस अंधे को नाचता कूदता हुआ देख रहे हैं आते हुए, तो क्या कहते हैं? इज दिस नॉट ही दैट सैट एंड बेग्ड? यहाँ पे लिखा है इस वचन में 8 में, कि क्या ये वो नहीं है जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांगता था? इन्होंने उसे पहचान लिया कि भाई ये तो अंधा था जन्म से और भीख मांगता था, ये नाचता कूदता हुआ कैसे आ रहा है? तो आगे क्या लिखा है? सम सेड दिस इज ही, उसने कहा ये वही है। अदर सेड ही इज लाइक हिम, कुछ कहने लगे नहीं नहीं यार, ये उसके जैसा लगता है, वो नहीं है। तो वो बंदा क्या कहता है? बंदा बोलता, बट ही सेड आई एम ही, अरे भाई मैं वही हूं जो अंधा था पहले, अब मैं सुजाखा हो गया हूं। ये जो लोग हैं, पहला ग्रुप है लोगों का, नेबर्स। ये फेमिलियर लोग हैं, इस व्यक्ति को जानते हैं, इसका अतीत जानते हैं, इसका पुराना समय इन्होंने देखा है, इनको मालूम है ये अंधा है, ये फेमिलियर है इससे। लेकिन इनके पेट में दर्द हो गया जब ये अंधा देखने लगा। अरे यार, ये तो वही अंधा जो भीख मांगता था। कहते ना लोग, "ओ यार, इसे तो हम जानते हैं, तो वही बंदा बड़ा बाइबल बगल में डाल के प्रचार कर रहा है, हम तो जानते हैं इसका अतीत, हम जानते हैं ये औरत कैसी थी, अब बहुत प्रभु का नाम ले रही है।" कुछ लोग कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे भाई, वो तो 900 खा के चली गई, लेकिन आप तो 901, 902, 903, 904 खाते ही जा रहे हो। ये पहला ग्रुप है लोगों का, ये अंधा सुजाखा हो गया है। ये वो लोग हैं जो इसका अतीत जानते हैं, बहुत फेमिलियर है। ये है स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी, जान पहचान का रूह है। जो जान पहचान का रूह है ना, आपको पहले ही जानते हैं, उनको कभी खुशी नहीं होगी जब यीशु मसीह आपका जीवन बदले, जब यीशु मसीह को इस्तेमाल करने लगेगा। ये ग्रुप होगा जो कहेंगे हम तो इसे जानते हैं यार, ये तो ऐसा था बंदा, ये तो फलाना ऐसा था, ये तो ये करता था, अरे यार छोड़ो उसको। ये बहुत गंदी आत्मा से भरे हुए लोग हैं, गंदी आत्मा से। आपको पता मनुष्य गलती क्या करता है? मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है, आपने किसी व्यक्ति को पाप करते हुए देख लिया, आपने इधर रजिस्टर कर लिया अंदर और इधर, अरे ये बंदा दुष्ट है, पापी है, ये नरक जाएगा। वही बंदा रात को पूरी रात यहोवा के आगे रोता है, यीशु मसीह के आगे बिलक बिलक के माफी मांग लेता है। अर्ली मॉर्निंग यीशु मसीह खुद आके उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब वो बंदा आपके सामने से गुजर रहा है ना, आपके लिए वो पापी है, क्योंकि आपको मालूम नहीं यीशु मसीह रात को उसको माफ कर गया। आप उसका अतीत जानते हो, आप उसका भूतकाल जानते हो, आप उसको अतीत के चश्मों से देख रहे हो। ये बहुत गंदी रूह है। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी। आप यहोवा परमेश्वर को सीमित करते हो। प्रभु कुछ भी कर सकता है भाई, किसी के जीवन में कुछ भी कर सकता है। अगर आप जानेंगे यहोवा कौन है, उसकी सामर्थ्य कितने अद्भुत हैं, आप लोगों को ऐसे जज नहीं करेंगे। आप आत्मा जज कीजिए। प्रभु कहता है एग्जामिन करें, डिसर्न करें, लेकिन आत्मा में करें, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पड़ोसी हैं, इनको हजम नहीं हुआ कि अंधा देखने कैसे लगा। इनके लिए वो अच्छा था जब सड़क के किनारे भीख मांगता था, ये खुश थे।
अब वो कुलाचे भरता हुआ, नाचता कूदता हुआ आ रहा है। अरे यार ये वही है। कुछ कह रहे नहीं यार उसके जैसा है। वो बंदा, अरे मैं वही हूं। स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी, इसके ऊपर जयवंत होना आपने। कोई कुछ कहे आपके विषय में, आपने 900 चूहे खा लिए ना, 901 नहीं खाना अब आपने प्रभु की ओर चलना है। हालेलुया। ये है स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी। जो जानते पहचानते हैं आपको, उनको प्रॉब्लम होगी जब यीशु मसीह आपको धोएगा, यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा की आग से भरेगा, यीशु मसीह का जलाल आपके चेहरे पे चमकेगा, यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा। वो जो आपको जानते हैं ना, आपके पड़ोसी, अतीत जानने वाले, उनके पेट में दर्द होगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पहला ग्रुप है जिसको प्रॉब्लम है। अब देखें आगे। इस बंदे को खुद गवाही देनी पड़ी। उसने कहा मैं वही हूं। अब देखें आगे चलें। Therefore, 10 वचन, said they unto him, how were thine eyes opened? तेरी आंख कैसे खुली? He answered and said, a man who is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed and I received my sight. जिसका नाम यीशु है, उसने मिट्टी गूंद के लगा दी। वो मिट्टी गूंद के इंसानों को बनाता है, मिट्टी गूंद के पूरी कायनात को खड़ा कर देता है। मिट्टी में दम, हमारा भी दम फूक। हम बोल के उसकी हमद नहीं, पत्थर जो यस्सु है उसने मेरी आंखें खोली हैं। तो क्या लिखा है? 12 वचन पढ़ें। देन सेड दे अनटू हिम, वेयर इज ही सेड, आई नो नॉट। वो उससे पूछते वो कहाँ है? ये कहता मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, मेरी आंखें खोल दी, मैं अपने घर लौट रहा हूं। हालेलुया। अब 13 वचन पढ़ें। दे ब्रॉट टू द फारसी हिम दैट अफोर टाइम वाज ब्लाइंड। अब ये लोग इसे पकड़ के ले गए किसके पास? फरीसियों के पास। पहली आत्मा है फेमिलियरिटी की। ये लोगों की बीमारी है। लोग आपको जज करते हैं, आपका अतीत देखा है, उस अतीत के लिहाज से आपको तोलते हैं। आप वहां नहीं हो अतीत में, आप तो आगे, आपका एड्रेस चेंज हो गया है, लेकिन ये लोग आपको वहीं खोज रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर रूह होती है लक्कड़ बग्घों की। हाइना समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, जो कब्रें खोदते हैं और सड़ा हुआ मांस खाते हैं। ऐसे कई ईसाई हैं जो लोगों के अतीत को खोदते हैं। उनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह के लहू में अतीत को धोने की कुदरत है। यीशु मसीह के लहू में ऐसी कुदरत है कि वो सामरी औरत को धो के उतना ही पवित्र कर देता है जितना माता मरियम है। वो मरियम मगदलीनी को उतना ही पवित्र कर देता है जितनी उसकी मां मरियम है। ऐसी कुदरत है। तो ये फेमिलियरिटी की स्पिरिट से पोजेस मत होना। अब ये स्पिरिट जो फेमिलियरिटी की है, इस बंदे को आगे कहां पेश कर रही है? फरीसियों के पास। फरीसी कौन है? फरीसी है पाखंड की रूह। यीशु मसीह कहता, हाय तुम्हारे ऊपर पाखंडियों। बाहरी मेकअप, बाहरी मेकअप ईसाइयों को पसंद होता है। बाहर से बहुत कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ नहीं होता उनके। प्रभु को बाहरी बनावट से कुछ लेना देना नहीं मेरे भाई। प्रभु आपको स्कैन करता है अंदर, आपके अंदर क्या है। ये उसे पकड़ के फरीसियों के पास लाते हैं। फरीसी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। फरीसी हैं पखंड का रूप, बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावे का रूप। एक एक्सटीरियर है बाहर, इंटीरियर नहीं है। तो उनके पास लाते हैं। तो क्या लिखा है? उसे लाते हैं जो पहले अंधा था, अब देखता है। तो क्या लिखा है? एंड इट वाज सैबथ डे व्हेन जीसस मेड द क्ले एंड ओपनड हिज आईज। पंगा ये है, सबत के दिन उसने मिट्टी गो के उसकी आंखें खोली। क्या होता है? 15 वचन। देन अगेन द फारसी ऑल्सो आस्क्ड हिम हाउ ही हैड रिसीव्ड हिज साइट। ही सेड अनटू देम, ही पुट आई डू सी। उसने मिट्टी को गो के मेरी आंख पे लगाया और मुझे रोशनी दे दी। हालेलुया। देयरफॉर सेड सम ऑफ द फारिसीज, फरीसी क्या कहते हैं? दिस मैन इज नॉट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है बंदा। क्यों? अदर सेड, हाउ कैन ए मैन दैट इज सिनर डू सच मिरेकल्स। ये है रियल मिरेकल।
वो बनावटी दिखावटी मिरेकल जो करते हैं ना कई लोग, वो बनावटी दिखावटी हैं। बहुत सारे लोग दवाइयां फिर भी लेते रहते हैं। जो रियल मिरेकल वर्किंग पावर है वो अलग है भाई और बहनों, वो बहुत अद्भुत है। तो वचन में लिखा है कि कौन पापी मिरेकल कर सकता है। एंड देयर वॉज ए डिवीजन अमंग देम। फरीसियों के बीच में डिवीजन पैदा हो गई, क्योंकि एक अंधा जो मां की कोख से अंधा जन्मा था, जिसने कोई रंग दुनिया का नहीं देखा था, आज सब कुछ देख रहा है। एक एक जांच रहा था और किसकी गवाही दे रहा है? जीसस की। भाई जीसस, उसने मिट्टी थूक से बना गोई इधर लगाई मेरे क्ले, बोला जाके शिलोम के कुंड में धो ले। मैंने धोया और मैं देखने लगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है 17वां वचन, दे से अनटू द ब्लाइंड मैन अगेन, व्हाट सेयस्ट दाउ ऑफ हिम? तू उसके बारे में क्या कहता है? दैट ही हैथ ओपन दाइन आईज, ही सेड ही इज अ प्रॉफिट। वो एक पूछ, तू क्या कह रहा है इसके बारे में? जो अंधा था पहले, वो कहता वो एक नबी है। ये फरीसियों का रूह है, फरीसियों की आत्मा। ये कलीसिया में बहुत की रूह। पहली रूह फेमिलियर स्पिरिट वो है जिसके चरणों में स्वर्ग में जाते हो और यहोवा की डिवाइन काउंसिल में बैठते हो और यहोवा के संग बातचीत करते हो और यहोवा के दूतों का झुंड आपके संग संग घूमता है और यहोवा आपको अपनी डिवाइन काउंसिल में बुलाता है। उनको ये कुछ भी नहीं मालूम, वो अंधे हैं। वो आपका अतीत जानते हैं, जब आप सड़क के किनारे भीख मांगते थे तो वो कहते हैं यार ये तो वो अंधा जो भीख मांगता था, अरे यार ये वही है। वो नहीं, आप जानते हैं इसको। ये फेमिलियरिटी की रूह है। दूसरी रूह है पखंड की, बनावटीपन की। दिख ऐसे प्लास्टिक हैं क्रिश्चियन, ये प्लास्टिक है सर, फ्लेकी हैं, बहुत ज्यादा बाइबल की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ये इसके अंदर जो थियोलॉजी है ना उसे यूज करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जीवन का झरने उनके अंदर से बहते नहीं है। तो ये दूसरी आत्मा है, दिखावे की, बनावटीपन की, बाहरी आडंबर की, फरीसियों की रूह। अब देखें 18 वचन में, बट द जूज डिड नॉट बिलीव। अब तीसरी आत्मा आ गई है, यह है धर्म की रूह। इन्होंने यहोवा को धर्म में बदला है। ये जूज हैं, यहूदी। यहोवा परमेश्वर के अद्भुत काम, उसने लाल समुद्र को फाड़ा, उसने स्वर्ग खोल के मन्ना बरसाया, वो जलाल का बादल बन के अपनी कौम पे उतरा, वो आग का खंबा बना, उसने उनको गोश्त खाने के लिए भेजा स्वर्ग से। उसने अद्भुत काम किए। जो नफलीम थे, जायंट थे, मिंगल्ड सीड थे, बड़े बड़े दैंत, उनको यहोवा ने मारा। वो धरती उनको मिरास में दी जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। अद्भुत काम किए पराक्रम के यहोवा ने। फिराउन और उसके रथों को महासमुंदर की तह में उतार दिया। उस पहली है स्पिरिट ऑफ फेमिलियरिटी, दूसरी है स्पिरिट ऑफ हिपोक्रेसी, पखंड का रूह है, तीसरी है स्पिरिट ऑफ रिलीजन। द जूस डिड नॉट बिलीव कंसर्निंग हिम दैट ही हैथ बीन ब्लाइंड एंड रिसीव द साइट अंटिल दे कॉल द पेरेंट्स। ये जो धर्म की आत्मा है ये बड़ी क्रिटिकल है। उनके पास अब बंदा पहुंच गया है, यहूदियों के पास, धर्म के ठेकेदारों के पास। धर्म के ठेकेदार मान ही नहीं रहे कि बंदा जमांदरू जन्म से अंधा था। कह रहे वी डोंट बिलीव। यीशु मसीह के मिरेकल को धर्म डिस्क्रेडिट करता है। यीशु मसीह के अद्भुत कामों को एब्सोल्युटली वाइप आउट करना चाहेगा धर्म। धर्म का रूप बहुत डेंजरस है। बहुत सारे नामधारी ईसाई लोग धर्म की आत्मा से जकड़े हैं। उन्हें मसीह की आत्मा ने पोजेस नहीं किया है। वो रिलीजन की डेडली स्पिरिट से जकड़े हुए हैं। सारी रिलीजियोसिटी है उनके अंदर, दिखावे की, बनावटी। प्रभु की आत्मा की बात नहीं है। यह स्पिरिट ऑफ रिलीजन है, ये डेडली है, इससे बचिए। कहीं आपने ईसाई धर्म का लबादा तो नहीं ओढ़ा हुआ है? कहीं आपने ईसाई धर्म की चादर में तो नहीं अपने आप को छुपाया हुआ? क्या आपका, आपके अंदर परमेश्वर की रूह के चश्मे बहते हैं? क्या आपके अंदर यहोवा का ये कलाम काम कर रहा है?
आपके अंदर की गहराइयों में? क्या यीशु के लहू की कुदरत आपके अंदर काम करती है, या आपने ईसाई धर्म का लबादा ओढ़ रखा है? ये धर्म की स्पिरिट है, ये मान नहीं रही परमेश्वर के कामों को। वो कह रहे वी डोंट बिलीव। तो उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एंड दे कॉल्ड हिज पेरेंट्स। अब चौथी आत्मा है, उसके पेरेंट्स, अपने घर के लोग। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तेरे अपने घर के लोग तेरे बैरी होंगे। यहूदियों ने, क्योंकि यहूदी जो हैं समाज के शक्तिशाली लोग हैं, सिनेगॉग चलाते हैं, सेनहीड्रन चलाते हैं ये लोग, और इन लोगों के हाथ में राजपाट है। जो हेरोड की गवर्नमेंट है वो इनकी सुनती है। तो पॉलिटिकली सोशली बड़े ताकतवर लोग हैं भाई, समाज इनके हाथ में है और सत्ता की चाबियां इन लोगों के हाथ में है। तो ये उसके माँ बाप को सम्मन करते हैं और क्या कहते हैं? एंड दे आस्क्ड देम, उनसे पूछते हैं, सेइंग इज दिस योर सन? क्या ये तुम्हारा बेटा है? हु इज से वाज ब्लाइंड? क्या तुम कहते हो कि अंधा था? हाउ देन डोथ ही नाउ सी? अब ये कैसे देखता है? उन्होंने बंदे की गवाही नहीं सुनी। धर्म कभी भी यहोवा के लोगों की साक्षी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। यहोवा के सच्चे लोग, जिनके संग यहोवा ने अद्भुत काम किए, जिनके पास यहोवा का तजर्बा है, उनकी नहीं सुनेगा। वो पता किनकी सुनेंगे? जिनको थियोलॉजी आती है, जिनको काले हरफों का ज्ञान है, उनकी सुनेंगे। जिन्होंने साक्षात यीशु मसीह सुनेंगे। ये कलीसिया का हाल है आज। कलीसिया में सच्चे सेवकों के लिए दरवाजे बंद हैं। आपको मालूम पासवानों का क्या हाल है, बहुतेरों का? वो अपने फेवरेट लोगों को बुलाते हैं चर्च में, जो सच्चे हैं, जिनके पास यहोवा के ऑरेकल्स हैं, जिनसे यहोवा बातें करता है, जो यहोवा के चरणों में रात गुजारते हैं, जिनके संग दूतों का खेमा चलता है, जिनके ऊपर यहोवा का जलाल साया करता है। वो नहीं पसंद उन्हें। उनको अपने फेवरेट बंदे चाहिए। पासवान कहते हैं आप हमें बुलाइए अपनी फेलोशिप में, हम आपको बुलाएंगे। आप हमारी पीठ खुजला दीजिए, हम आपकी पीठ खुजलाएंगे। दे डू नॉट वॉन्ट द ट्रूथ ऑफ गॉड टू बी प्रोक्लेम्ड। यहोवा का सच्चा कलाम, यहोवा की सच्ची बाणी फैलाई जाए, सच्चे मार्ग, सच्ची विधियां यहोवा की बताई जाएं, ये नहीं वो चाहते। वो अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, अपनी डिनोमिनेशन, अपनी इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिश्चियनिटी बहुत डेंजरस है। इंस्टीट्यूशनलाइज क्रिश्चियनिटी बहुत डेंजरस है। मैं आपको बताता हूं, कलीसिया यीशु मसीह की ऑर्गेनिज्म है, लेकिन लोग यीशु मसीह की कलीसिया को ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऑब्सेस्ड विद ऑर्गेनाइजेशनली ही कलीसिया को देखते हैं। ये प्रेसिडेंट है, ये चेयरमैन है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, ये फलाना है, ये फलानी टीम है, ये फलाना सिस्टम है, ये फलाना, ये ही देखते हैं वो। दे डू नॉट सी चर्च प्योर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम सब लिविंग लिम्स हैं, हम जिंदा सेल हैं उस ऑर्गेनिज्म के। तो ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, बिल्कुल बंदे से भी नहीं पूछ रहे। जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया है, वो उसकी गवाही कुछ नहीं मैंने रखती इनके लिए। उसके माँ बाप को बुला रहे हैं। हालेलुया। इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, सोशल एंड पॉलिटिकल। बहुत सारे लोग सोशल और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कई जगह अफिलिएशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कई जगह अफिलिएट होते हैं गलत शिक्षा में, क्योंकि उनके बच्चे फ्री स्कूल में पढ़ सकते हैं, या किसी ऐसी जगह अफिलिएट होते हैं क्योंकि उनको कोई पॉलिटिकल फेवर मिल सकता है, प्रभु के मार्ग पे नहीं चलते। तो इसके माँ बाप को बुलाया और उससे सवाल करते हैं कि ये अंधा ही था, अब इस कैसे देखता है? हिज पेरेंट्स आंसर्ड देम एंड सेड, वी नो दैट दिस इज अवर सन। हम जानते हैं कि ये हमारा ही बेटा है, एंड दैट ही वाज बोर्न ब्लाइंड। ये भी हम कहते हैं कि भाई ये अंधा पैदा हुआ था, बट बाय व्हाट मीन्स ही नाउ सीएथ वी नो नॉट। ये कैसे देखता भाई, हमें नहीं मालूम। माँ बाप ने अपने हाथ धो लिए पिलातूस की तरह। दे डोंट वांट टू गेट इनटू जीसस कंट्रोवर्सी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहते, यीशु मसीह के संग अटैच नहीं होना चाहते, कहीं उनकी निंदा ना हो जाए समाज में, कहीं समाज उनका बहिष्कार ना कर दे। ये यहूदी धर्म के ठेकेदार अगर इसके माँ बाप यीशु मसीह की गवाही देंगे तो ये इन्हें यहूदी समाज से निकाल देंगे। ये सेनहिड्रन में नहीं जा सकते, इनके बच्चे एथ सेफर में पढ़ नहीं सकते, इनको सारी प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगी।
सब जो सामाजिक अधिकार, सामाजिक बातें इन्हें मिली हैं और पॉलिटिकल जो बेनिफिट मिलते हैं सारे इनके बंद हो जाएंगे अगर ये जीसस का नाम लेते हैं। तो इस लड़के के माँ बाप भी पॉलिटिकली काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये अंधा तो हम जानते हैं, पर भाई इसकी आंख कैसे खुली हम नहीं जानते। देखिए कैसे माँ बाप हैं। एक माँ के आंखों से आंसू की धार बहनी चाहिए, मेरा बेटा अंधा था देख रहा है। एक बाप ऐसे पीट पीट के धन्यवाद करता है, मेरा बेटा तो जमांदरू अंधा था, ये भीख मांगता है, इसका कोई फ्यूचर नहीं था, ये लोगों के आगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाता था, यीशु मसीह ने इसको आंखें दी, यीशु मसीह ने इसको जीवन दिया, अब हमारा बेटा ये खूबसूरत दुनिया देखता है, अब हमारा बेटा स्वावलंबी होगा, स्वयं अपने पाँव पे खड़ा होकर कुछ कर सकता है, अब इसकी शादी हो सकती है, अब इसके बच्चे हो सकते हैं, अब इसकी फैमिली ट्री बढ़ सकती है। वो यीशु मसीह का धन्यवाद करते अगर उनके दिल में कृतज्ञ होते। लेकिन वो पॉलिटिकली और सोशली देख रहे हैं अपने आप को, कहीं हमें समाज से यहूदियों को निकाल ना दिया जाए, कहीं हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट ना बंद हो जाएं। देखिए कैसी गवाही दे रहे हैं। Many people like to be politically correct. They're very diplomatic. They play games. Playing games with God is a very, very deadly thing. God hates people who have conceit inside. Did you know that Jesus was so drawn to Nathanael? When he saw Nathanael come unto him, Jesus said, "Behold an Israelite. In him there is no guile." You know that guile, the root word in the Aramaic, because Matthew wrote the gospel in the Aramaic, that word guile is, it is something, some kind of deceit that is latched on unto your DNA. Jesus is talking about the nature at default, the nature at default in which we operate. This is the second sin nature. Bible uses a word for iniquity. It's called avan in Hebrew. It is a deeper thing than sin, which is khata, and pisha, which is transgression. The word for iniquity, Jesus took internal bleeding to remove the iniquity. He bled internally. He bled, his organs bled to remove the iniquity. Iniquity is deeper, it runs into the DNA. Jesus looked at that man, Nathaniel. He said, "In him there is no guile." Jesus is drawn to people who don't have this conceit inside, जिनके दिल अंदर से साफ हैं। कई लोग बड़े सादे होते हैं ना, जलेबी की तरह, प्रभु उन्हें पसंद नहीं करता। जलेबी की तरह लच्छेदार बातें करते हैं। ये क्या लिखा है? यीशु मसीह की सीधी गवाही नहीं दे रहे। तो क्या लिखा है? But by what mean he now seeth we know not, or who hath opened his eyes we know not. He is of age. ये जवान है, उम्र है इसकी। Ask him, उससे पूछ लीजिए। He shall speak for himself. अपने हाथ धो लिए उन्होंने। They did not want to be ostracized from the Jewish community, from the synagogue, from the Sanhedrin. They didn't want to lose privileges of being a Jew. So they just distanced themselves from their own son. Look at the mother. What kind of mother she was. She gave birth to a son who was born blind, had no eye. Jesus of Nazareth gave eyes to this man. He gave him light. He had no light. He lived in the dark. Jesus gave him the light. I told you on 3 occasions, Jesus said, "I am the light of the world." When he forgave that woman caught in the very act of adultery, he said, "I am the light of the world." When Jesus opened this blind man's eyes, he said, "I am the light of the world." When Jesus went to celebrate Hanukkah, the feast of dedication, when Jews were lighting up Jerusalem with lights, external lights they were putting everywhere, Jesus stood there and said, "These external lights, the lamps that you are putting to celebrate Hanukkah, this external light cannot remove." There was darkness when this woman was in sexual immorality. There is darkness when this man has, maybe his eyes were not created, eyeballs were not made, or perhaps his lids were shut. But Jesus gave religion of the Jews. मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं।
हालेलुया। भाई और बहनों, 3 तरह का अंधेरा यीशु मसीह निकालता है। एक पाप का अंधेरा, एक फिजिकल बाहरी अंधेरा और एक धर्म का अंधेरा। तीनों अंधेरे यीशु मसीह नासरी निकालता है। और आपको मालूम, इस बंदे ने तीनों स्पिरिट एनकाउंटर की। हालेलुया। और उसके बाद आप जानते हैं, इसका मैं आगे लेके चलता हूं आपको। इसके 24 वचन में फारसी उसे फिर बुलाते हैं। और आपको मालूम 24 वर्स में फारसी क्या कहते हैं? फारसी उसे कहते हैं, अगेन द फारसी कॉल द मैन हु वाज ब्लाइंड एंड सेड अनटू हिम, गिव गॉड द प्रेज। देखिए कितने जेलस हैं। कह रहे हैं यहोवा को प्रेज कर, जीसस की प्रेज मत कर। दे डोंट नो दैट यहोवा एंड जीसस आर वन, दैट जीसस इज द सन ऑफ यहोवा। जलते हैं जीसस से, जलन होती है। कहते हैं जीसस को प्रेज मत कर, यहूशा को प्रेज मत कर, यहुआ को प्रेज कर। वी नो दैट दिस मैन इज अ सिनर। वो कहते हैं कि हम जानते हैं यीशु पापी है। तो ये 25 वचन में, ही आंसर्ड एंड सेड, वेदर ही बी अ सिनर और नॉट आई नो नॉट। वो पापी है या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं भाई, कि मैं अंधा था पर अब मैं देखता हूं। हालेलुया। अब मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं। 35 वचन में आइए। मैं आज ही समाप्त करना चाहता हूं इसी सेशन में। Jesus heard that they had cast him out. This man was cast out. Parents were politically correct. They were very diplomats. They did not bear the testimony of Jesus. They didn't say to the Jews that a son is healed by Jesus. So the Jews did not ostracize them. Loved being in a religious system rather than being at the feet of Jesus. बहुत सारे ईसाइयों का ये हाल है। वो बेनिफिट लेना चाहते हैं गलत जगहों से। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को नर्सिंग हो जाएगी, किसी को कोई बेनिफिट मिलेगा। रोशनी से कुछ नहीं लेना देना, सच्चाई से कुछ नहीं लेना देना, परमेश्वर के सच्चे मार्ग से कुछ नहीं लेना देना। संसारी बेनिफिट चाहिए, ले लो, एक दिन पता लग जाएगा आपको। इसको निकाल दिया क्योंकि यीशु मसीह की गवाही देता है। इसके माँ बाप बच गए। तो यहां लिखा है, आफ्टर जीसस हर्ड दे हैड कास्ट हिम आउट, व्हेन ही हैड फाउंड हिम, जीसस फाउंड हिम अगेन। हालेलुया। फिर ढूंढ लिया यीशु मसीह ने। ही सेड अनटू हिम, डोस्ट दाउ बिलीव ऑन द सन ऑफ गॉड? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है? वो क्या कहता है? ही आंसर्ड एंड सेड, हु इज ही लॉर्ड दैट आई माइट बिलीव ऑन हिम? वो कौन है, मैं उस पे विश्वास करूंगा। जीसस सेड अनटू हिम, दाउ हैज बोथ सीन हिम एंड इट इज ही दैट टॉकेट विद थी। तूने उसे देखा और ये वही जो तेरे से बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने ये नहीं जताया कि वही जिसने तेरी आंखें खोली, और मैं ही तेरे लिए दुआ की थी, तेरी अक्कां खुली हैं। ये धौंस नहीं दे रहा यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है वो तेरे संग, तेरे सामने खड़ा है और तू उससे बातें कर रहा है। तो बंदा, आई बिलीव, आई सॉ इन माई स्पिरिट। उसी समय ये बंदा यीशु मसीह के पांवों पे गिर पड़ा। लॉर्ड आई बिलीव। और क्या लिखा है? एंड ही वर्शिप्ड हिम। He began to worship Jesus. This is the heart loaded with gratitude and appreciation. There are so many diplomatic Christians, so many Christians who like to be politically correct. They don't have love for Jesus. They don't honor him. They love not to be ostracized by the world. वो दुनिया को प्यार करते हैं, दुनिया के संग बना के रखना चाहते हैं। यीशु मसीह जिधर जाए जाए, ये उसी समय कहता है, उसके चरणों में गिर गया। एंड कितनी खूबसूरत, ये मुझे बहुत बढ़िया लगती है। लुक एट द वर्ड्स, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। क्या लिखा है यहाँ पे? एंड ही वर्शिप्ड हिम, ही फेल एट हिज फीट एंड ही बिगैन टू वर्शिप। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपको कोई अपरेटस चाहिए, आपको स्कैफोल्डिंग चाहिए वर्शिप करने के लिए? अरे भाई, उसके चरणों में गिर जाओ अभी। He fell at his feet and began to worship him. ये है ग्रेटिट्यूड से भरे दिल। फेमिलियरिटी की स्पिरिट डेंजरस है, हिपोक्रेसी की स्पिरिट डेंजरस है, धर्म की आत्मा डेंजरस है, पॉलिटिकली करेक्ट स्पिरिट डेंजरस है। ये 4 रुएं हैं इस चैप्टर के अंदर।
ये 4 तरह के क्रिश्चियन हैं, 4 टाइप्स। फेमिलियरिटी की स्पिरिट है कईयों में, उनके लिए जीसस बहुत कॉमन है। ओ यसु असी जानते यसु ਨੂੰ। They lost the awe, they lost the fear of the Lord because Jesus has become too familiar with them. Do not become overly familiar with Jesus. That will kill you. Move in the awe, holiness, and sacredness each day with Jesus. Breaking yourself and humbling yourself and repenting of your sins and bad deeds. Don't get puffed up and arrogant. दीन होके चलें उसके आगे। तो क्या लिखा है यहां पे? यहां पे लिखा है एंड ही वर्शिप्ड हिम फॉर, आगे जीसस क्या कहते हैं 39 वर्स में, फॉर जजमेंट आई एम कम इनटू दिस वर्ल्ड दैट दे विच सी नॉट माइट सी। बहुत पावरफुल वर्ड है। यीशु मसीह कह रहा है फॉर जजमेंट आई एम कम इनटू दिस वर्ल्ड। पीपल से ही इज कम विद ग्रेस एंड ऑल दोस काइंड ऑफ फैंसी थिंग्स। ही इज हिमसेल्फ सेइंग आई हैव कम विद जजमेंट। I am come into this world with judgment, that they which see not might see. जो नहीं देखते थे वो देखें, that which see might made blind. जो देखते हैं वो अंधे कर दिए जाएं। जो नहीं देखते वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे कर दिए जाएं। ये जो मजहब के ठेकेदार थे ना, पॉलिटिकली करेक्ट, रिलीजन के, मजहब के ठेकेदार, हिपोक्रेसी के बादशाह, पखंडवाद, लोगों के आगे अपनी इमेज बनाने वाले, परमेश्वर के संग टू फेमिलियर होने वाले, उनको त्याग दिया उसने। और जो साधारण अंधे थे उनकी आंखें खोल दी उसने। और क्या लिखा है? एंड सम ऑफ द फारसीज व्हिच वर विद हिम हर्ड दीस वर्ड्स, ही सेड अनटू हिम, आर वी ब्लाइंड आल्सो? क्या हम भी अंधे हैं? वो फरीसी कहते हैं। तो क्या लिखा? जीसस आंसर्ड अनटू देम, इफ यू वर ब्लाइंड यू शुड हैव नो सिन, बट नाउ यू से दैट वी सी, देयरफॉर योर सिन रिमेनeth। तुम्हारा पाप इसलिए बना रहता है क्योंकि तुम कहते हो हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भाइयों और बहनों, उसकी वर्शिप करें उसके चरणों में गिर के। मैं अंधा था, मेरी आंखें खोली जीसस ने। अब मैं उसके चरणों में बैठ के उसकी बंदगी करूंगा। मुझे फेमिलियर स्पिरिट वाले लोगों से कुछ लेना देना नहीं। मुझे हिपोक्रिटिकल स्पिरिट वाले लोगों से कोई फेलोशिप नहीं। स्पिरिट ऑफ रिलीजन से मेरी कोई फेलोशिप नहीं। पॉलिटिकली करेक्ट लोगों से मेरी कोई फेलोशिप नहीं। डिप्लोमैट हैं जो, आई वॉन्ट टू फॉल एट हिज फीट एंड वर्शिप हिम। उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना चाहता हूँ। आप भी उस टोले में शामिल हो जाएं, परस्तिश करने वाले, इबादत करने वाले। और इस हिपोक्रेसी से, ढकोसले से, और ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज धर्म चला रहे हैं ना, इनसे बच के रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे रोज मिला करेगा। आप डेली उसके चरणों में बैठ के उसकी परस्तिश करने पाएंगे।